السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے چند باتیں تبلیغی جماعت کے خلاف ہو رہے مظالم کے تحت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تبلیغی جماعت محمد الیاس کاندھلوی کے قائم کردہ ایک اسلامی اصلاحی سماج تحریک ہے، جس کی بنیاد سن 1926 میں پڑی تھی، اور یہ جماعت آج بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ بہت سارے ممالک میں سرگرم عمل ہیں۔ اس کا ایک مرکز نظام الدین ہے، جو دہلی کے اندر ہے۔ یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ اس میں تقریباً ہمیشہ 2000 سے 3000 لوگ رہتے ہیں۔ یہ ایک تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، جس میں لوگوں کو یہ ہدایات کی جاتی ہے کہ کس معاشرے میں جانا ہے اور کس مسجد میں جا کر وہاں سے سماجی برائی کو ختم کرنا ہے۔ اسی کے تحت اس بار بھی اس مسجد کے اندر، اس مرکز کے اندر تقریباً 3000 کے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن جب صوبائی اور مرکزی حکومت نے یہ ارشاد فرمایا، یہ لوگوں کو ہدایت دی کہ لوگ سماجی دوری بنائے رکھے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرے، تو تبلیغی جماعت والوں نے 20 تاریخ تک مرکز کے خالی کرنے کا فیصلہ قرار لیا، جس کے تحت بہت سارے لوگ اس مرکز چھوڑ کر اپنے وطن کو چلے گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ 22 تاریخ کو کچھ لوگ 21 تاریخ اور 22 تاریخ کو مرکز چھوڑ کر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن 22 تاریخ کو جنتا کرفیو کی بنیاد پر جو لوگ گئے تھے، سواری نہ ملنے کی وجہ سے، پھر مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اپنے آبائی وطن نہ جان پانے کی وجہ سے پھر سے یہ لوگ مرکز آ گئے تھے۔ مرکز آنے کے بعد یہ ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی۔ جب بہت بڑی تعداد ہوئی تو مرکز کے ذمہ داروں نے یہ سوچا کہ اس کی خبر انتظامیہ اور حکومت کو دی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سب سے پہلے وہاں کے SHO کے پاس گیا اور وہاں میٹنگ کی، اور ان لوگوں نے یہ اطلاعات ان کو دی کہ مرکز میں ابھی تقریباً 1500 کے قریب لوگ ہیں، اس کو کسی طرح سے ان کے وطن چھوڑ دیا جائے۔ تو وہاں کے SHO صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرے انڈر میں نہیں آتا ہے، لہٰذا آپ لوگ SDM کے پاس چلے جائیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے کوشش کے بعد ان لوگوں نے 25 مارچ کو SDM صاحب کو خط لکھا اور ان سے بات چیت کی۔ جب ان سے بات چیت کی تو SDM صاحب نے ان کے ذمہ داروں سے یہ کہا کہ آپ لوگ وہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی ایک لسٹ دیجئے۔ ان لوگوں نے لسٹ دی۔ لسٹ دینے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم بس دیں گے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم بس کا انتظام نہیں کر پائے۔ تو مرکز والوں نے پھر بس کا انتظام کیا۔ انتظام کرنے کے بعد سارے بس اور ڈرائیوروں کے لسٹ، اسی طرح وہاں جتنے سارے لوگ تھے، سارے لوگوں کا لسٹ ان کے پاس SDM صاحب کے پاس جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد پھر بھی انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اس وقت لوگوں کو ان کے وطن نہیں بھیج سکتے ہیں۔ ان تمام چیزیں ہونے کے باوجود گودی میڈیا اور بہت سارے لوگ اچھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان لوگ اس کرونا وائرس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اسی لیے لوگ مرکز میں چھپے ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ مرکز میں چھپے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے اور گھر جانے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہے تھے، لیکن جا نہیں پا رہے تھے مسلسل لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے۔ اور ان لوگوں نے تو SDM سے بات چیت کی، ان کو خط لکھا، لیکن ان کی کچھ نہیں سنی گئی۔ بالآخر وہ لوگ یہیں رہے، اور وہاں سے آنے والا اور اس مرکز سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کرونا وائرس
से उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने की वजह से फिर लोगों में सरकार हुकूमतों में खलबली मचने के बाद तरह तरह के अफवाहें फैलाने लगे कि तबलीगी जमात के लोग, मुसलमान लोग इस कोरोना वायरस को फैला रहा है और उसको रिवाज दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 13 मार्च को महकमा सेहत स्वास्थ्य मंत्रालय ये रिपोर्ट जारी करते हैं कि द कोरोना इज़ नॉट हेल्थ स्कैर, कोरोना ये सेहत के लिए मुज़िर और ज़रर रसा नहीं है। और ये कब तक चलता है? फिर 19 मार्च को हमारे पीएम मोदी जी लाइव आते हैं और ये कहते हैं कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लागू होगा। फिर उसी के तहत बहुत सारे लोग जनता कर्फ्यू को मानते हैं और उसके बाद फिर उसी इतवार को 22 तारीख को वो मुसलसल 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। लेकिन गोदी मीडिया और सरकार के रुपये पैसे में पलने वाले लोग ये कहते हैं कि जमात ने उनको छुपाया, जबकि इन लोगों ने उनको निकालने की सारी कोशिशें की, सारी इत्तलाआत इंतज़ामिया को दिए, लेकिन इंतज़ामिया उनकी एक भी ना सुनी। इसके बजाय सूबाई हुकूमत और सरकारी मरकज़ी हुकूमत ने मिलकर उस जमात के सरबराह मौलाना साद और उन मरकज़ के ज़िम्मेदारों पर FIR दर्ज किया। लेकिन मैं सूबाई हुकूमत, केजरीवाल और मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मेदारान से पूछना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों के इकट्ठा होने से उन पर FIR दर्ज किया जाए तो मैं उन संगठनों और सियासत ग्रोहों का नाम ले रहा हूं जिन लोगों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा लोगों को किया है, उन पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ है। नंबर 1, 16 मार्च को सिद्धि मना मंदिर बंद नहीं हुआ था। इस मंदिर में लोग सैकड़ों की तादाद में आते जाते थे, तो उस मंदिर के जिम्मेदार पर FIR कब दर्ज होगा। नंबर 2, 16 मार्च तक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं हुआ था, वहाँ भी लोगों के हज़ारों की तादाद में आना जाना होता था। बताइए इस भीड़ के जमा करने वालों पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ। नंबर 3, 17 मार्च तक श्रेणी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं हुआ था, वहाँ भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे। इस मंदिर के जिम्मेदारान पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ। नंबर 4, 17 मार्च तक शनि संकलापुर मंदिर बंद नहीं हुआ था, उस मंदिर के जिम्मेदारान पर केस कौन दर्ज करेगा। नंबर 5, 18 मार्च तक कश्मीर के विष्णु देवी का मंदिर बंद नहीं हुआ था, जहां पर तकरीबन 500 लोग फंसे हुए थे। जब उनकी इत्तलाआत सरकार को दी गई तो सरकार ने 5 स्टार होटल में उनके रहने और सहने का बंदोबस्त किया, उनके क़याम व ताम का इंतज़ाम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस जमहूरी मुल्क में अगर कोई लोग मंदिर में आकर फंसता है तो उनका क़याम व ताम का इंतज़ाम 5 स्टार होटल में होता है, और कुछ लोग अगर मुसलमान है किसी मरकज़ में फंस जाता है तो उनको कोरोना के फैलाने वाला बताकर उन पर, उनके ज़िम्मेदारान पर FIR दर्ज किया जाता है। इस जमहूरी हुकूमत पर एक धब्बा है जो एक ही मुल्क में कुछ लोगों के साथ दोहरा बर्ताव कर रहे हैं। नंबर 6, 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ सिंह मंदिर बंद नहीं हुआ था, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे और जाते थे। बताइए उनके जिम्मेदारान पर केस दर्ज कौन करेगा। नंबर 7, 23 तारीख तक संसद चली, उसमें खश्त सिंह भी मौजूद थे जो कनिका कपूर के पार्टी में शामिल था। जो कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अब बताइए उन पार्लियामेंट चलाने वालों पर आज तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ, उन पर FIR दर्ज कौन करेगा। नंबर 8,
23 तारीख को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हुई, जहां 300 लोग के करीब जमा हुए थे। बताइए उन मंत्रियों पर और वहां के मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज कौन करेगा? नंबर 9, पिछले 26, 27 और 28 मार्च को आनंद विहार, इसी तरह गाजियाबाद के बस टर्मिनल में तकरीबन 50,000 के लोग मौजूद थे। बताइए उनके जिनकी वजह से ये लोग एक जगह जमा हुए थे, उन पर FIR दर्ज कौन करेगा? नंबर 10, 22 मार्च इतवार को जनता कर्फ्यू में बहुत सारे लोग एक जगह हो गए थे, तकरीबन सारे लोग रोड पर आ गए थे। बताइए जिनकी वजह से ये लोग रोड पर आए थे, उन पर FIR दर्ज कौन करेगा? नंबर 11, 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ और अपने सिक्योरिटी के साथ अयोध्या आते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं। बताइए कि उनके मंत्रियों पर और इस मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज कौन करेगा? नंबर 12, 31 मार्च को, जी हाँ आपने सही सुना, 31 मार्च को तिरुपत्तूर के मंदिर में हवन होता है, जिसमें तकरीबन 200 लोग मौजूद होते हैं। बताइए उस मंदिर के जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कौन करेगा? इन सारे संस्थाओं पर अगर FIR दर्ज नहीं हुआ है तो तबलीगी जमात के अमीर पर और उनके ज़िम्मेदारों पर FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप इन पर दर्ज करते हैं तो इन पर भी दर्ज कीजिए, तभी जाकर ये जमहूरी मुल्क अपने हक़ को पहुँचेगा। मैं आप मरकज़ी हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस को किसने लाया? आपने जब सारे मुल्कों में ये आम हो गया कि कोरोना वायरस दूसरे जिन ममालिक में हुए हैं वहाँ से लोगों को हिंदुस्तान आने की इजाज़त आपने क्यों दी? जबकि 13 से लेकर 15 मार्च तक लोग दूसरे ममालिक से जिनमें कोरोना आम हो चुका था, उन ममालिक से हिंदुस्तान आया है और उन्हीं के ज़रिए से कोरोना फैला है। मैं इन बातों के बाद अपने तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, खा हिंदू हो या मुस्लिम हो, लोगों को एक दूसरे के मज़हब के नाम पर ना बांट कर लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ना पड़ेगा। मुसलमानों या हिंदुओं, सारे लोगों को हुकूमत की मदद करनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के बाद अपने समाजी दूरी बनाए रखना पड़ेगा और हुकूमत सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, जो आपको हिदायत दे रहे हैं, उन हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो आपके लिए भी भलाई है और हुकूमत के लिए भी भलाई है। ये वक्त ऐसा वक्त है कि हुकूमत को और पब्लिक को एक साथ खड़े होकर कोरोना इस वबाए आम के ख़िलाफ़ जंग करना चाहिए और जंग करके इस कोरोना वायरस को हराना चाहिए। आइए हम सब ये वादा करें कि हम एक होकर समाजी दूरी मेंटेन करके, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम हुकूमत के साथ खड़े रहें और इस कोरोना वायरस को सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। और रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, लोगों भलाई के कामों में और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद करो के तहत हम एक दूसरे की मदद करेंगे और इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और इसे ख़त्म करके रहेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, रब्बुल आलमीन इस कोरोना वायरस को सफ़ाई हस्ती से दुनिया से ख़त्म कर दे और हम तमाम मुसलमानों को और हिंदुओं को इससे नजात दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।